Okay, let's we start with our further study. That is our chapter number one. We will discuss here chapter number one. It is also regarding the reproduction. Okay, on it is some of that. It may be some of the topic from this chapter may be delete from your syllabus, but we should do it because. These all are interrelated, so some question may be asked in your NEET exam. Hence, we should be ready with it. So, look, we start with the chapter number one, reproduction in organism. Each and every organism can live only for a certain period of time. Look, this is the very peculiar and specific explanation of the living organism. What is it? Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural date, highlight natural date. From birth to from birth to natural date. Natural date due to that old age, that all the particular things. This natural date, it is called as the lifespan. ओके तो ये जो तो पूरा टॉपिक है उसके बाजू में ये दो लाइन है उसको ऐसा करके वहां पे क्वेश्चन मार्क कर दो और बाजू में लिख दो लाइफ स्पान. This explanation was asked in Gujket as well as the in NEET exam. 4 options were there and every option में कुछ ना कुछ फॉल्ट दिया था. पर्टिकुलर जो है उसमें नेचुरल डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ. Lifespan of a few organisms are given in figure 1.1. Look, जैसे पेपर you turn the page, that will be certain living organism figures and photographs are given. You have to find out the lifespan of that particular organism. You can find out from the Google as well as you can find out from the this given reference book also. I am giving this as your homework and I will put this answer as means I will give the answer in next video. Lifespan of a few organisms are given in figure 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the space provided. So you have to write it. I will give you in your not this messages, but I will give you in next video. So this is your homework. Example, the lifespans of the organism represented in figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that may be as short as a few days or as long as a few years? Means क्या है? It is interesting that the sum of the organism has the lifespan of the few days. Few days में ही उनका lifespan over होता है. Mosquito है, बहुत कुछ है. And there are the other organisms, they have the not few years but hundreds of years. Many trees, etc. Between these two extremes are the lifespan of the most other living organism. बोलो मिनिमम जिसका लाइफ स्पैन है ना वो फ्यू डेज का जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो, और हंड्रेड्स ऑफ ईयर जो ट्री का ने जिसका भी है वो, इसका पूरा है उसके बीच में ही दूसरे अदर एनिमल का है. कोई का 10 ईयर्स है, कोई का 20 ईयर्स है, कोई का 100 ईयर्स है, कोई का 125 ईयर्स है, लाइक दैट. Between those two extremes are the lifespan of the most other living organism. You may note that the lifespan of the organisms are not necessary. Highlight करो, not necessarily से correlated with their size. ऐसा नहीं है कि those who are having the large size, large animal or the large plant, large animals है कि large plant है,
तो उनका लाइफ स्पान सबसे ज़्यादा होगा। बोलो क्या होगा इसका लाइफ स्पान? छोटा भी हो सकता है। And those are having the small size animal or the plant may have the long lifespan. ऐसा भी नहीं कि अगर जो बड़ा एनिमल है तो शॉर्ट ही होगा, बड़ा एनिमल भी बड़े हो सकता है, बड़ा प्लांट है तो ही बड़ा हो सकता है। मीन्स देर इज नो एनी कोरिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल एंड द लाइफ स्पान। Size of the animal as well as the plant means size of the living organism. You may note that lifespan of the organisms are not necessarily correlated with their size. The sizes of the crows and the parrots are not very different, yet their lifespans show a wide difference. कितना है वो तुमको फाइंड करना हैगा. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan than that of the peepal tree. Peepal tree and mango tree I have seen, and you have also noticed their size are almost same. But peepal tree has a much more lifespan than that of the mango tree. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan that compared to the peepal tree. Whether to be the lifespan depth of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal. Highlight karo. What is the peculiarity of the living organism? Means death is compulsory. Certain death. डेट तो होने की है, सर्टेनिटी है उसमें, होने की है। दोज हु आर लिविंग दे हैव टू डाई, उनकी डेथ है ही। दिस इज द मेन फीचर ऑफ द लॉन्ग ऑर्गेनिज्म. नॉन लिविंग डू नॉट हैव डेथ. Reproduction and this and that you have studied in the chapter number 1 of the 11th standard, but those are the not the most important characteristics of the living organism. Living organisms are those have the death. That is, no individual is immortal except single cell organism. Look, biologically when we are calling single cell organisms are immortal. बरोबर है, biologically single cell organisms are immortal. Single cell organism like that of the amoeba. Look, this amoeba has the, कहाँ इसकी फिगर थी? Look, in the पेज नंबर ऑन द पेज नंबर 5 टर्न द पेज एंड द ये अपने फिगर यहाँ पे दिए. अमीबा हैज वर्ड, ये सिंगल एनिमल है, सिंगल सेल एनिमल, सॉरी सिंगल एनिमल नहीं, सिंगल सेल एनिमल. आफ्टर द सर्टन आवर्स दिस विल बी अंडरगो सेल डिवीजन. सो इट स्प्लिट इन टू. तो ये कहाँ गया? ये दो में डिवाइड हो गया. तो बोलो इसको डेथ नहीं है लाइक दैट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाट? बैक्टीरिया ऑल्सो सो लाइक दिस वन. बट तुम ऐसा सोचो तो ओरिजिनल वन था वो तो चला ही गया ना, वो दो में स्प्लिट हो गया, मींस ओरिजिनल वन तो चला गया. एज कंपेयर टू द सॉरी, गिवन दिस रियलिटी हैव यू एवर wondered how vast number of plant and animal species have existed on the earth for several thousands of years? There must be some process in living organism that ensure this continuity. Highlight karo. There must be some processes in living organism that ensure this continuity. Means what? Except single cell organism, all organism has the certain death. डेथ तो होनी है. अगर जो एक ऑर्गेनिज्म एक्स है वो एक्स की थोड़े टाइम के बाद में, उसके लाइफ स्पैन के बाद में उसकी डेथ होती है, तो सो व्हाट विल बी हैपन? एंड ऑफ द स्पीसीज? नो. व्हाई नो? बिफोर दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस. दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. द मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ द लिविंग वन बिफोर डेथ. After achieving a certain age, after having the
certain lifetime, they reproduce. Reproduce means they produce an organism like that on. This add new one. अब ये न्यू वन है, वो न्यू वन को भी तुम यहीं पे ले लो, तो वो जो न्यू वन आएगा वो भी जब ग्रो करके ने ऐसा आएगा तो वो डेथ के पहले क्या करेगा, रिप्रोडक्शन. व्हाट डस मीन कि ऐसे ही जो न्यू वन जितने भी आते रहेंगे वो सब ऐसे ऐड होते रहेंगे. मींस एक डेथ होती है उसके पहले दूसरे ऐड हो जाते हैं. हेंस वी कैन से दैट कंटिन्यूटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन ऑन दिस अर्थ. Yes, we are talking about the reproduction. Something that we take for granted. Granted हमने समझ लिया है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट हैगा. तो देखो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन लिखो. Death is certain but living organisms continue on this earth. How it is possible? चलो, we are here discussing the topic reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, means offsprings, similar to itself. Highlight करो definition of the reproduction. कहाँ से स्टार्ट करोगे? रिप्रोडक्शन डार्क लाइन्स डार्क लिखा है वहां से. रिप्रोडक्शन इज डिफाइन, वहां से स्टार्ट करना आएगा. तो सिमिलर टू इटसेल्फ वहां तक हाईलाइट करो और बाजू में लिख दो डेफिनेशन. ग्रो. अब बोलो ये जो उसने ऑफस्प्रिंग को बर्थ दिया है, नवा ऑफस्प्रिंग आया है, तो वो ऑफस्प्रिंग क्या करता है पहले? इट हैज द ग्रोथ, मीन्स इट ग्रो. बोलो क्या है स्प्रिंग ऑफस्प्रिंग? थस देयर इज द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर डेथ. ग्रो होके वो कैसा होता है? मैच्योर होता है. बोलो मैच्योर होने के बाद में उसकी क्या होती है? आफ्टर सर्टेन टाइम द डेथ इज नेसेसरी. अब बोलो डेथ होएगा तो क्या होगा? ये ऑफस्प्रिंग आया, मीन्स बोलो क्या था, क्या हम बोलेंगे यहाँ पे क्या था पूरा समझेंगे तो ऑर्गेनिज्म. बोलो ऑर्गेनिज्म ने क्या करा? ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, उसकी डेथ हुई. अब बोलो इसमें ने क्या होता है? जब ऑफस्प्रिंग मैच्योर होता है तो बोलो वो अपने क्या करता है? रिप्रोडक्शन. तो वंस अगेन रिप्रोडक्शन से क्या आता है? न्यू ऑर्गेनिज्म. तो न्यू ऑर्गेनिज्म भी फिर अपने बोलो क्या करता है? ऑफस्प्रिंग, उसका भी ग्रो, उसका भी मैच्योर होता है, वो भी डेथ होता है. बट वो मैच्योर का भी जब डेथ होता है उसके ने पहले बोलो वो किसको प्रोड्यूस करता है? न्यू ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑफस्प्रिंग. उसका भी ग्रो होता है, वो मैच्योर होता है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, और जो ओरिजिनल था उसका डेथ होता है. मीन्स दिस विल कंटिन्यू फॉर द ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. Thus, there is a cycle of birth, growth, and death. Reproduction enables the continuity of the species. Generation after generation. You will study in later chapter number 5. We have studied it. तो देखो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वहां तक का है. तो बोलो क्या? अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन किया था कि death is necessary, but on this earth every kind of the organism continue. तो उसका आंसर यहाँ से आएगा. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए, वहां से करके बोले क्या? जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो उसका आंसर हुआ. There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply. यार रिप्रोडक्शन नहीं बोला है, बोलो यहाँ पे अपने क्या आएगा? रिप्रोडक्शन तो है, दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बट हियर दे हैव गिवन द वर्ड मल्टीप्लाई. बोलो क्या है? बोलो भाई इट इज गिवन द वर्ड मल्टीप्लाई. बोलो क्यों? वो अपने मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई हो गया, चलो मल्टीप्लाई लिख दिया था, मल्टीप्लाई. वाई?
एज फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स, दैट स्ट्रीट डॉग, तो बोलो एक मेल है एक फीमेल है, तो बोलो ये क्या करते हैं, जब मेच्योर होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दे डू नॉट गिव बर्थ टू द ओनली वन ऑफस्प्रिंग बट अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर। बोलो एवरी ईयर 3 आए, तो बोलो ये 2 थे और हो गए कितने, 3, मीन्स क्या हुआ, मल्टीप्लाई। सपोज these male and female dog remain active for 5 years, they will give the birth to the 15 offspring। और उसके ने बाद में ये दो का क्या हुआ, डेथ हुआ, मीन्स से 15 आए, तो बोलो 2 में से कितने हो गए, 15, मीन्स 2 में से क्या हुआ, वो मल्टीप्लाई। सम ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट आस्क मी, सर तो ऐसा होगा तो फिर सबके ऑफस्प्रिंग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो ये तो पूरा वर्ल्ड है, पूरा अर्थ है, सरफेस है, वो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म से भरती जाएगी। यस, that your thinking is right, but you will study in that chapter of the evolution, वो सब उसमें आता हैगा, डार्विनिज्म ने वो सब, कि जब भी यहाँ पे ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता हैगा, उसके अंदर स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, स्ट्रगल चालू होता है, कंपटीशन स्टार्ट होती है, एंड सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, और वो स्ट्रगल के अंदर जो फिट होते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वही क्या कर देंगे, सर्वाइव कर देंगे। वो एक अलग टॉपिक हो गया। हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग द क्वेश्चन रिलेटिंग दैट द रिप्रोडक्शन मीन्स मल्टीप्लाइड, इंक्रीज इन नंबर। There is a large diversity in biological world. Each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. The organism's habitat, वो कौन से habitat में रहता है, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। बोलो ये मल्टीप्लाई रिप्रोडक्शन के लिए बोलो कौन सा है, उसका पहले हैबिटेंट, बोलो उसका पहले मोस्ट ऑफ ऑल बोलो क्या आएगा, द ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व ऑन बिकॉज बोले प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, हैबिटेंट हैगा, क्यों एक एक वर्ड रह जा रहा है, चलो हैबिटेंट। अगर जो वो मराइन है तो क्या रहता हैगा, अकॉर्डिंगली उसका अपने मल्टीप्लिकेशन होगा। मराइन में जो फिश रहती है, मराइन फिश एवरी टाइम इट लेज द एग्स और गिव बर्थ टू द अप्रोक्सीमेटली एवरेज 1 लाख ऑफस्प्रिंग, और out of this 1 lakh hardly one can survive, hardly one। अब स्टूडेंट बोलते कि हार्डली वन, तो सर फिर वो तो कम होती जाएगी ना, नहीं होगी, बिकॉज दिस स्पीसीज हैज, वो फिर बहुत ज़्यादा वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, एबिलिटी टू लेस द एग्स एवरी वीक एवरी मंथ, वो सब ऐसा रहता है। तो देखो वो इसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे आया इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी। बोलो 1 lakhs एग, 1 lakhs एग एवरी वीक, उसमें से हार्डली वन सर्वाइव करेगा, तो बोलो एवरी मंथ में कितने हो गए, 4 lakhs, उसमें से हार्डली वन मीन्स 1 or 2 न्यू फिशिस विल सर्वाइव, मीन्स इंटरनल फिजियोलॉजी। अब यही चीज तुम देखो, अभी अपने हमने डॉग पे सोची थी, तो एवरी ईयर 3 डॉग्स 4 डॉग्स, बर्ड्स में देखो एवरी ईयर 1 or 2 एग्स, मीन्स देयर हैबिटेट, वो कहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बर्ड्स में है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसके ऊपर प्रीडेटर का इतना खतरा नहीं है जितना मराइन में है, उससे कम खतरा कहाँ पर है, फ्रेश वाटर में है। So these all are the habitat is the very important, as well as their internal physiology is also important. Several other factors are collectively responsible for how it reproduce। Other factors भी है, environmental factor, बोलो ऐसा एनवायरमेंट में वो एनिमल सर्वाइव करता है, इट इज वेरी कोल्ड, तो क्या होगा, अकॉर्डिंगली वो मल्टीप्लाई करेगा। अगर जो बहुत हॉट में हैगा तो अकॉर्डिंगली करेगा, डेजर्ट में है, फॉरेस्ट में है, सब वो दूसरे अलग फैक्टर्स हैं। बेस्ड ऑन वेदर there is a participation of one organism or two in process of the reproduction, it is of 2 types। बोलो participation in reproduction, reproduction of the participation
of one organism, participation of the two organism. Two organism means you can make out one male and one female. One male, one female. One organism, there is no male and no female. So depending on this, there are two types. When offspring is produced by a single parent or without the involvement of gamete formation. Bolo, only participation of the one organism, that is called the single parent. Single parent means no gametes, without gametes. Reproductive cells, egg or the sperms are not produced. तो बोलो दो है यहाँ पे, दोनों को इसको हाईलाइट करो. व्हेन ऑस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, ये फर्स्ट पॉइंट ने. सेकंड, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल. बोलो इसको इन्हें क्या बोलेंगे? नो गैमेट्स और विथ गैमेट बट नो फर्टिलाइजेशन. अभी मैं बाजू में लिखाता हूँ, तो उसको इन्हें बोलेंगे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बरोबर है. यहाँ साइड पे लिखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें से फर्स्ट पॉइंट लिखो सिंगल पेरेंट. सेकंड पॉइंट लिखो विथ गैमेट, नो फर्टिलाइजेशन, parthenogenesis. We have studied in honeybees. And C, without formation of gamete means what? Gamete है but no fertilization, parthenogenesis, without formation of gametes. The reproduction so when two parents opposite sex. अब बोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या आएगा? टू ऑर्गेनिज्म मीन्स टू पेरेंट्स, बट टू पेरेंट्स इज नॉट इनफ. हाईलाइट करो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स. बोलो कैसे? ऑपोजिट सेक्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मेल and female, male and female. अब देखो एसेक्सुअल का लिखा है, ऐसा ही कहीं यहाँ पे भी लिख लो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स, ऑपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल. बोलो क्या? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. A, B, by formation and fertilization. The reproduction is asexual when two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों का ही डिफरेंस समझ में आना चाहिए. इट वाज वंस आस्क्ड इन द 2 मार्क्स क्वेश्चन, वुड राइट द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल टेक पार्ट. इसमें आएगा एसेक्सुअल, पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली वन सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल पेरेंट. Second, gametes may form, may not form. If gametes are formed, no fertilization but parthenogenesis. यहाँ पे आएगा gametes are formed and fertilization and zygote formation is necessary. इसके अलावा के अंदर दूसरे भी डिफरेंस आते हैं. क्या हैंगे? तो अभी देखो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें से मिलेंगे. फिर हम यहाँ पे देखते हैं उसको. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In this method, a single individual parent is capable of producing a offspring. ये हमने लिखा पढ़े, a single one organism.
As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copies of their parent. तो बोलो यहाँ पे asexual में क्या आएगा? Offsprings are exact identical to their parent as well as each other. तो सेक्सुअल में क्या डिफरेंस आएगा? ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस आर ऑलवेज डिफर फ्रॉम देयर parent as well as each other because during the gamete formation crossing over take place. ये आना चाहिए ये आंसर ये डिफरेंस बोलो. asexual reproduction single organism, sexual reproduction two parents male and female opposite sex लिखना पड़ता है ये. चलो gamete formation take place if gametes are formed parthenogenesis no fertilization or no gamete direct other method. तो यहाँ पे by formation of gametes as well as fertilization take place. तो asexual में आएगा offsprings are always exactly identical to their parent as well as each other. तो यहाँ पे आएगा offsprings are may not be exactly generally not exactly like that of the parent and they are of the same each other because during the process of the gamete formation crossing over take place. As a result, the offspring that are produced are not identical to one another but are also exact copies of their parents. Are these offspring likely to be genetically identical or different? तो बोलो क्या आएगा ये फोर्थ. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. जेनेटिकली भी वो बोलो कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल टू एज वेल एज टू पेरेंट्स. उसका जो सिंगल पेरेंट है उसके साथ. तो यहाँ पे क्या आएगा फोर्थ? ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू देयर पेरेंट बिकॉज फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स टेक प्लेस. इसे सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस बोलता हूँ. स्टूडेंट बोले वो तो बहुत इजी है बट दे आर नॉट गेटिंग द मार्क्स. सो लुक हियर वी आर फॉर्मिंग द 4 पॉइंट्स. अभी देखो आगे भी कुछ मिलता है. The term clone is used to describe such morphological and genetically similar individuals. तो यहाँ पे अपने क्या आएगा? They are the called as the clone. Clone are not formed. Clone यानी genetically and morphologically both are identical. Then they are called the clone. बोलो. So this is the say asexual reproduction, sexual reproduction. बोलो asexual reproduction क्या बोलेंगे? A single organism parent take part. Sexual reproduction, two parents of opposite sex, male and female, are involved. Asexual reproductions, no gametes are formed or gametes are formed, no fertilization, parthenogenesis take place. Sexual reproduction, by formation of the gametes as well as fertilization and zygote will be formed. Third, offsprings are exactly identical to each other as well as their parents. Offsprings are not exactly identical to each other as well as their parents. Then, genetically asexual reproduction, genetically identical to each other as well as parents. तो यहाँ पे क्या आएगा? Genetically not identical to each other as well as their parents because crossing over take place. यहाँ पे लिखेंगे genetically and morphologically identical. So asexual reproduction offsprings are called as clone. Here we can say they are not known as the clone. Chalo, let us see how the widespread asexual reproduction is among the different groups of the organism. Asexual reproduction common among the single cell organism. बोलो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का पहले हम अभी यहाँ पे स्टडी करते हैंगे. बोलो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या स्टडी करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बोलो कॉमन किस में आएगा? सिंगल सेल. ऐसा नहीं है कि मल्टी सेल्यूलर में नहीं है बट हियर व्हाट वी आर स्टडिंग एट दिस मोमेंट उसमें सिंगल सेल वाला है. मल्टी सेल्यूलर का बाद में हम देखते हैं.
Asexually reproducing common among the single cell organism and in plants and animals with relatively simple organization. बोलो मल्टीसेल्यूलर में कौन हैगा? सिंपल, क्या बोलेंगे कंपेरेटिवली, चलो वो तो बाद में देखते हैं पूरा डिफरेंस में, इसके साथ में डिफरेंस करने जाएंगे तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो लुक, asexual reproduction is common in single as well as the simple structure multicellular plant and animal. In protista and monerans, बोलो कौन सा आएगा? मोनेरा, मोनेरंस एंड प्रोटिस्टा. बोलो मोनेरंस कौन है? मीन्स प्रोकैरियोट्स. प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स बट सिंगल सेल. तो बोलो मोनेरा कौन है? प्रोकैरियोट्स. प्रोटिस्टा कौन है? वेल डेवलप्ड सेल न्यूक्लियस मीन्स यूकैरियोट्स, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर्स यूकैरियोट्स. इसमें भी यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा मीन्स कौन सा यूकैरियोट? सिंगल सेल एनिमल ग्रुप एंड सिंगल सेल प्लांट मीन्स algae. The organism of the parent cell divide into two to give rise to new individuals. बोलो यहाँ पे जो फिगर है, बोलो क्या आपने करते हो? सेल डिवीजन. सिंपल सिंगल सेल है तो बोलो उसके अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन. एंड ड्यू टू द सेल डिवीजन न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म, न्यू सेल्स. दिस न्यू सेल्स आर नॉट बट दे आर द न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल. सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन लीड्स टू फॉर्म द न्यू सेल्स मीन्स टू न्यू सेल्स. और हम क्लियर कर देवे तो टू न्यू सेल्स. And these two new cells are what? The two new offspring. Because each cell is a one individual. Simple organization, so give rise to new individuals. Thus, in this organism, cell division itself is a mode of reproduction. So, बोलो क्या बोलेंगे? This cell division is what? It is a one kind. It is a mode of reproduction. Many single cell organism reproduce by binary fission. बोलो अब ये जो हुआ इतना पूरा, उसके अंदर फर्स्ट बोलो क्या है? बाइनरी फिशन. Where single cell divides into two halves and each rapidly grows into two an adult amoeba and paramecial. Whole cell divide into two halves, दो हाफ बन गए and each develop into new one. And produce remain in each the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast. अब बोलो दूसरे में क्या आएगा? बर्ड फॉर्मेशन. बर्ड्स किस में होता है? तो यीस्ट में. बोलो यीस्ट में क्या होता है? वही सेल डिवीजन है, बट वन सेल इज लार्ज and second cell is small, very small, remain attached to large one. Remain attached to large one, and after having some time it detached, and then it turns into new individuals. देखो फिगर में दिया हैगा, फिगर में दिया, ये फिगर देखो यहाँ पे,
ये जो पहले पैरामीशियम की ये साइड पे दिए दैट इज अ बाइनरी फिजन। यहाँ पे देखो ये सेल है, इस सेल का जो सिंपल सेल डिवीजन हुआ, सो न्यू सेल्स आर नॉट ऑफ दैट ऑफ द टू इक्वल साइज बट वन इज लार्ज, सेकंड वन इज वेरी स्मॉल, दोनों सेपरेट हो गए। आफ्टर सम टाइम दिस स्मॉल सेल विल सेपरेट, until it separate it is known as the bud. After it will be developed into single new one. Eventually get under unfavorable condition, amoeba withdraw its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around its cell. This phenomenon is called encystation. बोलो थर्ड क्या आएगा? encystation. बोलो इसमें हमने क्या है, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, दिस इज द अमीबा। अमीबा हैज दिस ऑल, ऐसा 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 जो होता है उसको ना बोलेंगे सूडोपोडिया। व्हेन देयर इज अ अनफेवरेबल कंडीशन लाइक दैट ऑफ द ड्राइनेस और द हाई टेम्परेचर एनीथिंग, तो क्या करता है ये, इट विड्रॉ द सूडोपोडिया, इट टर्न्स समथिंग लाइक दिस वन, इट डेवलप थ्री कवरिंग, एक तो उसका था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिसाइड दिस टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, दिस इज कॉल्ड cyst and process is known as the encystation. Now look, this development of the cyst, it has the protection against the unfavorable condition and it survive. But when favorable condition arrive, what happen? This undergo cell division. अंदर ही उसको सेल डिवीजन होगा. Means two first mitotic division, two cells, but they have this on both the end one nuclei and cytoplasm surrounding them. इसमें कुछ अभी न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं हुआ. वंस अगेन दिस सेल अंडरगो सेल डिवीजन, पूरा कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं फॉर्म होता है. G1 नहीं होगा, ओनली S होगा और G2 होके सेल डिवीजन होगा. ये भी यहाँ पे डिवाइड होके ऐसा बनेगा. Once again from these they undergo cell division. बोलो G1 नहीं होता किसी का भी, डायरेक्ट S and G2. बोलो ऐसे जितना पॉसिबल है सबका सेल डिवीजन होगा. So there are number of new nuclei surrounding them, cytoplasm is there. When favorable condition return, the encysted amoeba divides by multiply fission and produce many minute amoeba or pseudopodospore. बोलो क्या बोलेंगे इसको, एवरी को क्या बोलेंगे, माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडोस्पोर्स. बोलो क्या बोलेंगे उसको, सूडोपोडियोस्पोर्स. मैं भी बोलता हूँ जब वो कितने स्टूडेंट उसको स्फीयर समझते, स्फीयर नहीं, सूडोपोडोस्पोर. वो स्पोर बोलने जाते जब वो ऐसा प्रोनाउंस हो जाए जैसे स्फीयर. सो हाईलाइट करो उसको, सूडोपोडोस्पोर्स. द सीस वॉल ब्रस्ट, ये हो जाने के बाद में दिस ऑल है डेवलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बोलो ये सब माइन्यूट अमीबा बना, सूडोपोडोस्पोर्स बना और फिर ये सिस्ट ब्रस्ट हुआ. Look, as it burst, what will be happen? These all minute amoeba released. They are released in the surrounding medium to grow up into the many amoeba. This phenomenon is known as the sporulation. ये जो रिलीज होता है उसको ने क्या बोलेंगे, sporulation. तो एंसिस्ट में एंसिस्टाइजेशन एंड sporulation both are common interconnected.
एंसिस्टाइजेशन हुआ मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन आई तो दे हैव डेवलप्ड द 3 प्रोटेक्टिव लेयर, दे सर्वाइव ड्यूरिंग दिस सिस्ट कंडीशन मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट एंसिस्टमेंट होके ने वो सर्वाइव करा। जब फेवरेबल कंडीशन आई तो उन्होंने नंबर्स ऑफ टाइम फ्यूजन यानी कि सेल डिवीजन करा और सेल डिवीजन करके माइन्यूट और द सूडोस पोडियोस्पोर्स बनाए और वो जो बनाने के बाद में जब रिलीज हुआ तो उसको बोलेंगे स्पोर्युलेशन। मीन्स sensitization and sporulation as interconnected if it is asked in the exam sensitization तो स्पोर्युलेशन तक भी डिस्क्राइब करना है ना, स्पोर्युलेशन पूछते तो एंसिस्टाइजेशन पहले से स्टार्ट करना है। Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure. The most common of these structures are zoospores. अब बोलो यहाँ से हमने ये सब थोड़े बहुत एनिमल का स्टडी करा, अब बोलो किसका आएगा? सम ऑफ द algae and simple plants. Some of the algae and some simple other plants have the some specialized structure. Those are known as the zoospore. That usually are microscopic and motile. Means they produce special kind of cells. These produce special cell. These special cells are number one minute and they are motile. They have ability to move from one place to other place. They are known as the zoospores. Zoo means animal. Animals like spores. Animal has ability of motility. These spores, यहाँ पे अभी जो हमने देखा था अमीबा में भी स्पोर बना था, तो ऐसा ही यहाँ पे स्पोर बनता है, बट दे हैव द एबिलिटी टू मूव, सो दे आर नोन एज अ zoospore. That are usually microscopic, motile. Other common asexual reproduction कोनिडिया इन पेनिसिलियम। देखो यहाँ पे फिगर में दी है, बोलो ये जो फर्स्ट फिगर है क्लेमिडोमोनास का जूस्पोर है और ये बोलो पेनिसिलियम में बोले क्या है? कोनिडिया। कोनिडिया मीन्स क्या हुआ? ये सिंगल सेल यहाँ पे था, उसके ऊपर बोलो नंबर्स ऑफ डिवीजन हो के 1 2 3 4 5 6 सेल बने हैं, उसके ऊपर 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब ने सेल बने। एंड एवरी सेल का जो इलोंगेटेड एंड पार्ट है, अब उसका जो डिवीजन होता हैगा, फ्रॉम दैट डिवीजन स्मॉल स्मॉल सेल्स आर प्रोड्यूस एंड दोज सेल्स आर द रिलीज्ड एंड दे आर नोन एज अ कोनिडिया एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज द कोनिडियोस्पोर स्ट्रक्चर। एनिमल देखो यहाँ पे सभी एग्जांपल मिक्स कर दिए, किसके किसके? जूस्पोर किसके? algae एंड सम सिंपल प्लांट्स। फिर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है? फंगाई है। बर्ड्स, हाइड्रा एंड जेम्यूल स्पॉन्ज। बोलो हाइड्रा में क्या आता है? बर्ड्स। हाइड्रा जो ऐसा होता है एनिमल सिलेंड्रेट, उसकी जो ये बॉडी है वो बॉडी पे बोलो क्या रहता है? टेंटेकल्स। अब यहाँ से स्किन बॉडी के ये जो थोड़ा पार्ट ऐसा 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 डेवलप होता है एंड आफ्टर सम टाइम इट डेवलप इनटू द न्यू एनिमल, इसको बोलेंगे बर्ड। ये बर्ड जब थोड़ा बहुत डेवलप होता है, इट डिटेच फ्रॉम द मदर बॉडी एंड वो जब यहाँ से ये फ्लोट होके जाके यहाँ पे गिरेगा, इट विल हैव इट्स ओन independent life, it will grow in a new hydra. Gemmules, sponge में gemmules बनते। What are the gemmules? Gemmules are one kind of these birds, but they are internal. Sponges होते हैं स्पोरीफेरा, पूरी बॉडी पे उनके पोर्स रहते हैं, उसके अंदर इंटरनली ये पूरा डेवलप होता है बर्ड, और फिर वाटर फ्लो के साथ में ये बाहर निकल जाता है। You have learned about the vegetative reproduction in class 11. What do you think? Is vegetative reproduction also a type of the asexual reproduction? Yes. Why do you say? Because no gametes are formed, so it is called as a asexual.
Difference is that in that vegetative reproduction means in plants, plant parts, as for example stem, root, etc., take part in the process of reproduction. So it is also one kind of the asexual reproduction. Is the term clone applicable to offspring formed by the vegetative? Yes, because structural भी वही रहेगा और जेनेटिकल भी वही रहेगा, तो क्लोन उसके लिए भी वर्ड यूज होगा. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used. बोलो, प्लांट में बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एनिमल के लिए बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. टू मेक ए डिफरेंट ओनली, ऑल द मोस्ट ऑफ प्रोसेस थोड़े बहुत तो सेम ही रहते हैं. While this in plants the unit of the vegetative propagation as runner. बोलो रनर. रनर की फिगर नहीं दी आप. बोलो रनर. In some grasses, this is their root, their leaves, etc. ग्रास. तो क्या होता हैगा, यहाँ से जो एक्सिलरी बड में से जो उनका स्टेम डेवलप होता है, दे स्टेम स्प्रेड ऑन द, किसके ऊपर, ग्राउंड पे स्प्रेड करता है. अब ये स्टेम है तो स्टेम के ऊपर अपाइकल बर्ड है. दिस अपाइकल वे बर्ड व्हेन कम इन कांटेक्ट ऑफ द ग्राउंड, जैसे ही वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आता हैगा वहां इट डेवलप द एस वेजिटेटिव न्यू प्लांट. यहां से एक और डेवलप होता है. just it is running on the ground, so it is known as the runner. Rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable. बोलो कौन सा आएगा, rhizome. Rhizome you have studied and here given in the figure B, that is in ginger. This underground, ये प्लांट है, उसका ये रूट है, रूट में से यहाँ से अंडरग्राउंड स्टेम डेवलप होता हैगा. इस अंडरग्राउंड स्टेम इट रिमेन पैरेलल टू द ग्राउंड एंड देन आफ्टर स्टोर द फूड. बोलो ये स्टोर फूड है तो बोलो स्टेम हैगा, स्टेम है तो दिस इज अपाइकल बर्ड. These all are nodes. और ये सब पूरा स्टेम है तो बोलो इसके ऊपर से ऐसे एडवेंटेजियस रूट डेवलप होते हैं एंड देन आफ्टर दिस सेपरेट एंड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट. जितने भी यहाँ पे बर्ड के पार्ट है वहाँ से एक्सिलरी बर्ड डेवलप होके न्यू प्लांट बनता है. स्केली लीव्स, हाँ देखो ये जो नोड है वो नोड पे वो तो बोलने का रह गया, वहाँ पे जो लीव्स होते हैं दो ज़्यादा स्केली लीव्स, उसके लिए लीव्स है. ये मेन पार्ट क्या है, प्लांट है, तो दोनों के बीच में क्या है, एक्सिल है. प्लांट के एंड लीफ के बीच में जो रहता है उसको ना बोलेंगे एक्सिल. एक्सिल में जो डेवलप होता है उसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड. सो दिस कंप्लीट वन इज द स्टेम. और वो जो स्टेम है तो बोलो यहाँ पे स्केली लीव्स है. स्केली लीव्स तो मीन्स लीव्स एंड दिस प्लांट, तो लीफ एंड प्लांट के बीच में एक्सिल. एक्सिल में से एक्सिलरी बर्ड ऐसी डेवलप होगी मीन्स न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड. देन आफ्टर सकर्स. बोलो सकर्स जो है वो सकर्स बोलो यहाँ पे दिए फिगर नहीं दिए, बल्ब भी लगे हो, लीफ बर्ड्स, ब्रायोफाइलम, मॉस्पेट, वाटर हाइसिंथ एक्सेट्रा. सकर्स ट्यूबर, ट्यूबर की फिगर दी है, ट्यूबर की हाँ दी है. फर्स्ट वन पोटैटो. पोटैटो पूरा जो अंडरग्राउंड पार्ट है बोलो वो अंडरग्राउंड उसका स्टेम है, वो स्टेम मिस ब्रांच है. इट डेवलप एंड इज अपाइकल पार्ट स्टोर द फूड एंड इट डेवलप इनटू द swollen part. That swollen part is known as the tuber. अब वो ट्यूबर है पूरा, ट्यूबर के अंदर यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड एंड वो सब रहता है, उसको बोलेंगे आई न्यू प्लांट.
ऑफसेट, देखो वहां पे ऑफसेट की फिगर दी है ई, दैट फिगर ई इज ऑफसेट इज समवॉट लाइक दिस वन, बट डिफरेंस इज व्हाट, ये जो है ये ग्राउंड पे डेवलप होता है ना, वो जो ऑफसेट है वो वाटर में डेवलप होता है, वाटर हाइसिंथ की दी है फिगर। और वो फ्लोट करने के लिए थोड़ा उसका पार्ट ठीक भी रहता है, एरेनकाइमा टिश्यू होती है उसमें, कौन सी, एरेनकाइमा, एयर कंटेनिंग, एयर इज प्रेजेंट इन इस इंटरसेल्यूलर स्पेसीज। एंड बल्ब, बल्ब यानी देखो वहां पे बल्बियल ऑफ अगेव दिया आएगा, ऐसा कोई भी एक्सिलरी बर्ड के, अपाइकल बर्ड के, फ्लोलर बर्ड जो डेवलप हो गए, फूड स्टोर करके डेवलप होगा, एंड देन आफ्टर इट सेपरेट, और जहां पे भी गिरेगा वहां पे इट डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, इट इज कॉल्ड एज अ बल्ब। ऐसे ही बल्ब एक दूसरा भी है, कौन सा, ऑनियन एक्सेट्रा। These all are capable of giving rise to the new offspring. These structures are called vegetative propagates. बोलो क्या बोलेंगे उसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स। ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स। एक बार शॉर्ट नोट राइट, डिस्क्राइब वेजिटेटिव प्रोपोगेट्स, तो ये सब पूरा जो पैराग्राफ है यहाँ तक उसको एक्सप्लेन करना था। Obviously, since the formation of this structure does not involve two parents, बोलो इसमें कुछ दो पेरेंट्स आते हैं नहीं है। The process involves asexual distinct pieces, means fragment, उसका पार्ट होगा। Each fragment grows into an adult capable of producing a offspring. Example हाइड्रा, हाइड्रा जो था कहाँ गया, पहले आया था बर्ड में। बोलो हाइड्रा ऐसा है तो हाइड्रा में क्या हुआ, इसके से 3 पार्ट हो गए, तो ये अपाइकल पार्ट हैगा, इतना रहा, ये मिडल पार्ट इतना हैगा, ये बेजल पार्ट इतना हैगा। तो क्या होगा, ये जो अपाइकल पार्ट इतना है वो क्या करेगा, उसका बेस बना लेगा, सिंगल हाइड्रा हो गया। ये जो बीच में का पार्ट है ये ऊपर की तरफ से यहाँ से टेंटिकल डेवलप करेगा, नीचे बेस बना लेगा। ये जो नीचे का पार्ट जो सेपरेट हुआ है फ्रेगनेंट पीस है, वो ऊपर की तरफ ऐसा अपने पूरा टेंटिकल डेवलप कर लेगा। दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। बोलो क्या बोलेंगे उसको, फ्रेगमेंटेशन। सो देखो इसके आगे का अभी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके चलो।